السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلتے ہیں ہم اپنے اگلے لیسن کی جانب، جس میں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھتی ہوں کہ قاری قرآن کے لیے عزت کا تاج۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن مجید آئے گا اور کہے گا کہ اے میرے رب، اس قاری قرآن کو زیور پہنا دیجئے، تو اس شخص کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن مجید پھر کہے گا، اے رب، اور زیادہ اس کی عزت افزائی فرمائیے، تو اس قرآن پڑھنے والے کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ قرآن مجید پھر کہے گا، اے میرے رب، اس سے راضی ہو جائیے، تو اللہ اس شخص سے راضی ہو جائے گا۔ پھر فرمائے گا، قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ، ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی بھی زیادہ کر دی جائے گی۔ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ تو اب جو ہے سورہ الفاتحہ کے بعد سورہ البقرہ، جو کہ انتہائی آسان تجوید کورس تطبیق کے ساتھ شروع ہو رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے تجوید میں پڑھوں گی اور اس کے بعد آپ کو تطبیق سمجھاؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک تطبیق کر لیتے ہیں۔ با کی زیر کو سین کے ساتھ ملائیں گے تو بس، سین کی سیٹی کو واضح کریں گے۔ میم کی زیر کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور اس میں جلالہ جون سا ہے وہ باریک پڑا جائے گا۔ بسم اللہ راہ، ہا کی زیر کو یعنی کسرہ کو را کے ساتھ ملاتے ہوئے را پر پڑا جائے گا۔ الرحمن الرحیم، میم پہ کھڑا زبر ہے جس کو 2 حرکات کے برابر یا پھر 1 الف کے برابر کھینچتے ہوئے نون کی زیر کو را کے ساتھ ملائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، را کی زبر کو پر پڑا جائے گا را کو، اور ہی یہاں پہ یا مدہ ہو رہی ہے 1 الف یا 2 حرکات کے برابر، اور میم پر وقت بالاسکان ہو جائے گا۔ الرحیم۔ اب آگے ہے الف لام میم۔ اب لام کو ہم نے 6 حرکات کے برابر کھینچنا ہے اور پھر میم پہ باقاعدہ طور پہ غنہ کیا جائے گا کیونکہ میم مشدد ہے، اور پھر جب میم کو ہم کھینچیں گے تو یہاں پہ یائے مدہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ یائے مدہ کرتے ہوئے میم ساکن کر دیں گے تو یہاں پہ الف لام میم، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی 6 حرکات کے برابر کھینچا جائے گا۔ ذالک الکتاب، ذا پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام ہے جس کو کھڑا زبر کہتے ہیں، 1 الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچا جائے گا، اور لام کی جو زیر ہے اس کو ہم باریک پڑھیں گے، لی کل، کاف کی زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے، ذالکل، لام کو ہلانا نہیں ہے، کتابو، کاف کی زیر کو باریک پڑھتے ہوئے تا پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام ہو رہا ہے، 1 الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچے گے، کتابو، با پہ ضمہ یا پھر پیش ہے تو اس کو ہم اس حرکت کو نہ لمبا کریں گے
ना ही मजहूल पढ़ेंगे और ना ही झटका। मजहूल कैसे? किताबो, वो नहीं पढ़ेंगे, बू पढ़ेंगे, ठीक है। और झटका भी नहीं, किताब, ये भी झटका कहलाता है, इस तरीके से भी नहीं पढ़ा जाएगा। या फिर खींचने से या लंबा करने से क्या मुराद है? किताबू, ये भी गलत तरीका है। तो लिहाजा जो हरकत होती हैं जो कि ज़ेर, ज़बर और पेश कहलाती हैं, इनको हमने लंबा नहीं करना। ज़ालिकल किताबु, ला, इसको हम खींचेंगे, लाम ज़बर अलिफ, ला है, एक अलिफ या दो हरकत के बराबर। रॉइबा, यहाँ पर याइलीन का कायदा हो रहा है, नरमी से पढ़ना है, लेकिन रॉ पुर पढ़ा जाएगा। रॉइबा फीह, यहाँ पे याय मद्दा यानी फी को एक अलिफ या दो हरकत के बराबर, क्योंकि या साकिन से पहले फा है और फा के नीचे क्या है? कसरा यानी जेर है, तो इसलिए इसको मद्देसली बिल या फिर याय मद्दा कहेंगे, और हा पे वक्फ करते हुए हम इसको साकिन कर देंगे। फीह हुदल लिल मुत्तकीन, हा की पेश को हम लंबा नहीं करेंगे और तनवीन ज़बर को लाम के साथ मिलाएंगे। तो यहाँ पे इदगाम बगैरुल गुन्ना यानी हुदल लिल, ये नहीं हमने पढ़ना कि हुदल लिल, ये गलत तरीका है। हमने क्या करना है? इसको बगैर गुन्ने के पढ़ेंगे, हुदल लिल मुत्तकीन, टी पे या मद्दा और नून पे वक्फ बिल इस्कान हो जाएगा। अल्लज़ीना, अब हमजा जो सबसे लाम है, तो लाम से पहले हमने क्या है? शुरू में कोई हरकत नहीं, तो अलिफ लगा देंगे, अलिफ के ऊपर यानी ज़बर, ठीक है, उस हरकत को पढ़ा जाएगा। अल्लज़ीना, री पे या मद्दा हो रही है, एक अलिफ या दो हरकत के बराबर, और नून की ज़बर को हम खींचेंगे नहीं, ना ही मजहूल पढ़ेंगे। अब यहाँ पे यहाँ पे वाव देखें, वाव के ऊपर हमजा और ऊपर साकिन की इलामत है, तो यहाँ पे हम झटका देंगे। युमीनूना, मीम की जेर को बारीक करते हुए इस हरकत को लंबा नहीं करेंगे, और नून पे वाव मद्दा हो रही है, तो इसको एक अलिफ या दो हरकत, क्योंकि वाव साकिन से पहले नून आ रहा है और नून के ऊपर क्या है? पेश है, तो वाव साकिन से पहले जब पेश आती है तो उसको वाव मद्दा या फिर मद्दे असली बिल वाव कहते हैं, जिसको एक अलिफ या फिर दो हरकत के बराबर खींचना होता है। युमीनूना, अब नून की हरकत को हम लंबा नहीं करेंगे। बिल गौइबी, बा की जेर को लाम के साथ मिलाएंगे, बिल, लेकिन लाम को हिलाना नहीं है। इसी तरह से गौइन को पुर पढ़ेंगे। यहाँ पे याइलीन का कायदा हो रहा है। याइलीन का कायदा क्या कहलाता है? या साकिन से पहले यहाँ पे गौइन आ रहा है, तो क्या है यहाँ पे? यानी या साकिन से पहले ज़बर आ रही है, ठीक है, फतहा, तो फिर हम क्या करेंगे? गौइबी, लेकिन नरमी से पढ़ना है। वयुकीमून अस्सलाता, वाव पे हरकत है जो कि इसको खींचा नहीं जाएगा, और वाव को होंठों की ना तमाम गोलाई से, यानी होंठ इतने गोल करने हैं कि ये एक जो पेंसिल है ना, बिल्कुल उसके अंदर इजीली दाखिल हो सके मुंह के होंठों के दरमियान में, तो इतने होंठ खोलने। वा युकी, या की पेश को हम लंबा नहीं करेंगे, और टी को क्या है? या मद्दा हो रही है, तो यहाँ पे हम एक अलिफ या दो हरकत के बराबर, इसी तरह मुंह पे वाव मद्दा हो रही है, तो यहाँ पे एक अलिफ या फिर दो हरकत के बराबर खींचेंगे। वयुकीमू, और नून की ज़बर को हम सौत के साथ मिलाएंगे, लेकिन सौत क्या है? हरूफ मुस्तआलिया में से है, और इसको हमने सौत को पुर पढ़ना है। वयुकीमून अस्सलाता, और सीटी की आवाज़ आएगी, ये हरूफ सफीरिया में से भी है, ठीक है। ला जो से खड़ा ज़बर है, और इसको भी एक अलिफ या दो हरकत के बराबर, और ता की हरकत को लंबा नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा कि हरकत किनको कहा जाता है? जिनको हरकत सलासा कहा जाता है, और हरकत सलासा से क्या मुराद है? ज़ेर, ज़बर और पेश। अरेबिक में क्या कहा जाता है? फतहा, ज़म्मा और कसरा, ठीक है, इनको लंबा नहीं करना, मजहूल नहीं पढ़ना, खींचना नहीं, याद रखिएगा। वयुकीमून अस्सलाता व मिम्मा, अब यहाँ पे क्या? वाव की हरकत को लंबा नहीं करेंगे, और यहाँ पे गुन्ना हो रहा है, मिम्मा। गुन्ना क्या होता है? नाक में थोड़ी देर आवाज़ को ठहराना है, और इसमें अलिफ मद्दा भी हो रही है, इसको एक अलिफ के लाजमी खींचना है, एक अलिफ के बराबर या फिर दो हरकत के बराबर। व मिम्मा,
रज़क़नाहुम, रॉ को पढ़ेंगे और ज़ा ये भी इसकी सीटी की आवाज़, और ये एक ऐसी जैसे एक मक्खी की बिनबिनाहट होती है ना, उस तरह की आवाज़, जैसे ये वाली। और कौफ पे कलकला किया जाएगा। रज़क़नाहुम, नून पे खड़ा ज़बर है, एक अलिफ या दो हरकत के बराबर, और मीम पे इजहार का कायदा हो रहा है, यानी हम पे यानी मीम पे हम ठहरेंगे नहीं। युनफिकून, अब या की पेश को हम नून के साथ मिलाएंगे, योन, लेकिन नून पे क्या होगा, इख्फा होगा, क्योंकि आगे फा आ रहा है, हरूफे हल्की में से नहीं है। क़ू पे मद्देसली बिल वाव का कायदा, और नून पे वक्फ करते हुए वक्फ बिल इस्कान। अब आप लोग साथ साथ जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है, छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लिया करें कि इख्फा का क्या मुराद है, और गुन्ना किसे कहा जाता है, या लीन क्या होता है, और इदगाम बगैरुल गुन्ना किसे कहा जाता है, और ये गुन्ना कैसे करना है, मद कैसे खींचनी है। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला आप आहिस्ता आहिस्ता यही चीज़ें आपको अज़बर हो जाएंगी। वल्ल